कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे। गिरीश जी, आज आपके रिटायरमेंट के अवसर पर ये जो आपसे संवाद करने का मौका मुझे मिला है, इसके लिए सबसे पहले नंदिता को धन्यवाद। आई रिग्रेट दैट आई मेट यू वेरी लेट इन माय करियर, बट आई एम हैप्पी दैट आई मेट यू and I was fortunate enough to work with you. In you, I found a Karma Yogi, someone who was absolutely committed to public service, who had very high ideals, and above all, impeccable integrity. Your qualities of head and heart, your vast knowledge, your willingness to always be there for others were also a source of great strength to me at INGAF, and I cherish the moments we worked together. उस दिन मैं INGAF आ नहीं सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे घर की टेरेस पे शाम की चाय पर आपका इंतज़ार है। This message I am giving for my senior accounts officer, Mr. P.K. Giri, who is retiring today. Mr. Giri has taken voluntary retirement to look after his family. Mr. Giri is a very dedicated officer, and Mr. Giri is one of those rare breed of officer who instills confidence in his senior officer and has the trust of his junior officer. Mr. Giri has been a very good link between the management and the staff and officers down below in this institute. The organizing capacity of Mr. Giri was evident during the time of Corona crisis. In this institute, we have all the Group A ICS officers, and during the time of crisis, Corona crisis, Mr. Giri managed this institute remotely and also coming at the institute, and it was commendable since all the officers who were staying with us stayed here only, and he managed to give them online training. After the Corona crisis, when the institute opened, then we totally shifted to a new model. Earlier, this institute had classroom and it is specialized in giving classroom training. But because of Corona, we had to shift to online training. And Mr. Giri organized that also, that this institute has beautifully shifted all its training to online training. It is very rare to find an officer like Mr. Giri, and his dedication to his family is evident. In this age when everyone looks after post-retirement job, Mr. Giri is taking voluntary retirement even though he has government service left to look after his family. I, as director in GAF, wish all the best to Mr. Giri in his all the future endeavor, and I wish that Mr. Giri remains attached to this institute. Thank you. Dear Pradeep Giri ji,
it gives me immense pleasure today to say a few words about you. We know each other for the last 15-16 years, and even though there were gaps of long period, but still we have remained connected with each other. You are truly a divine soul and a pious soul too. You introduced me to the spiritual path, for which I will always be thankful to you. You are a soft-spoken, very well composed and a very cheerful personality with a very positive frame of mind. As you have decided to take voluntary retirement from government service, I hope and wish that you will spend more quality time with your wife, your daughter and other family members. I am also sure that you will pursue your journey on the divine path and able to attain self-realization. I have hopes that you will attain the stage of high consciousness and serve the humanity with Mansa, Vachna and Karmana. I wish you all the very best for your life and pray to God Almighty to always keep showering His divine blessings on you. Om Shanti. नमस्कार। पता चला आप रिटायर हुए 30 सितंबर को। बहुत बहुत मुबारक हो आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ के लिए। आप मेरे साथ 2014 और 15 में शायद काम किया, 14-15 में काम किया है। तो आई ऑलवेज रिमेंबर फॉर योर गुड वर्क। 2-3 चीज़ें हैं आपकी जो मेरे को सदा याद रहेंगी। एक तो आपकी सिंप्लिसिटी, सेकंड थिंग आपका द प्रॉम्प्टनेस टू वर्क, एंड थर्ड थिंग एंड इन फैक्ट दैट्स द बेस्ट इज योर किलर स्माइल। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। भगवान आपको खुशी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बेस्ट विशेस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश झा है और मुझे गिरी जी के साथ कुछ समय तक भारत सरकार में साथ काम करने का अवसर मिला था। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की है, जब मैं 2009 से 2012 के बीच में वहाँ सेवा में था। उसी दौरान मेरी मुलाकात गिरी जी से हुई। गिरी जी मितभाषी तो हैं ही और मृदुभाषी भी हैं। पहली मुलाकात में बहुत कम बातें हुई। गिरी जी कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फाइलों के माध्यम से उनकी जितनी स्पष्ट समझ थी सरकारी नियमों की, कायदों की, और जो उनका लंबा अनुभव था, वो सब बड़ी स्पष्टता से फाइलों में निकल कर आता था। उनके सरकार में योगदान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति ली, कारण जो भी रहे हों। लेकिन मैं जानता हूँ कि गिरी जी जहाँ भी होंगे, जिस भी भूमिका में होंगे समाज में, वो समाज के लिए एक अत्यंत ही उपयोगी सदस्य के रूप में और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहेंगे। मैंने न सिर्फ अपने विभागीय दायित्व के दौरान उनसे संपर्क किया, बल्कि कुछ अन्य मौक़ों पर उनकी जो पर्सनालिटी है उसके अन्य हिस्सों के बारे में भी मुझे जानने का मौका मिला। उनके गांव के बगल के एक स्वर्गीय अवधेश पांडे जी होते थे, जिनसे मेरी मुलाकात कुशीनगर की मेरी यात्रा के दौरान उनसे हुई थी। मैं गिरी जी के माध्यम से उनसे भी जुड़ा रहता था, और जब भी वो गांव जाते तो मेरा जो भी एक छोटा सा उनके लिए
पैकेट होता वो उन तक श्रद्धा से पहुंचाते थे, उनके संदेश भी आते थे और भी बहुत सारे विषयों पर उनसे बातचीत होती रहती थी। गिरी जी की जो सबसे खास बात है कि इतना संतोषी प्रवृत्ति का आदमी, इतना ग्राउंडेड आदमी, आज की तारीख में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कुछ स्पीसीज़ इस ब्रह्मांड से गायब हो रही हैं, उस तरह से हमारे मानव समाज में इस तरह के लोग अब बहुत कम बचे हैं। गिरी जी, आप जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा। आप जितने पॉजिटिव हैं, आपने जितने निष्कलुष होकर और जितना सेल्फलेस होकर लोगों के साथ अपना व्यवहार रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी भाव से आप सरकार के बाहर भी लोगों के काम आएंगे। हमेशा खुश रहिएगा। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से और उन सभी आपके साथियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आना चाहता था आपके पास, लेकिन जो कोरोना ने हम सबके सामने चुनौतियां रखी हैं उसकी वजह से मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जब भी स्थितियां सामान्य होंगी, मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपको आकर अपनी शुभेच्छाएं देना चाहूँगा और आप सपरिवार हमेशा खुश रहिए और हमेशा संपर्क में बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार गिरी जी, कैसे हैं आप? I got to know about your retirement from your daughter. I had a chance to work with you in my initial years of service, and I've always known you as a wonderful human being and a very hard-working, sincere and a thorough professional. I hope you continue the same way as you have been in your post-retired life. I wish you all happiness, health, good health and prosperity in the post-retired life. Stay in touch. Wish you happiness always. Thank you. गिरी जी से मेरी और उनके साथ में 10 महीने मेरे साथ काम कर चुके हैं and he is a very fine person, very good at Camera on rules and top, working untitled on procedures. bottom. Apart Pause. from this, Snapshot. He is very humane, very helpful to all. He Snapshot. comes for helping anyone. He is a very spiritual bent of mind and has a good outlook to society. I hope he would be having a good post-retirement life. I wish him a very happy, healthy, peaceful and very, very joyful years ahead. हेलो गिरी सर। सर, जब आपका फ़ोन आया कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो सचमुच में अच्छा नहीं लगा। इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। मुझे लगा डिपार्टमेंट वाले बड़ी मुश्किल से माने होंगे, इतनी आसानी से तो नहीं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सचमुच में अपने आप को धनी समझ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों से ही चल रहा है, जिंदा है और अपने को योगदान अपना दे रहा है। सर, जब भी आपका नाम आता है मेरे जहन में सचमुच में अंदर से एक बड़े ही बहुत एक खुशी की अनुभूति होती है। मुझे लगता है ये दुनिया अभी इसीलिए अच्छी है क्योंकbe अच्छे लोग अभी हैं इस दुनिया में और बड़े सीधे सरल लोग हैं और दुनिया इन्हीं सीधे सरल लोगों से ही चल रही है। मैं क्या कहूँ सर, रिटायरमेंट वर्ड अब क्या कहूँ, कोई मायने नहीं रखता। आप जैसे लोग रिटायर कहाँ करेंगे? आपका कार्य क्षेत्र भले ही बदल जाए, आप यहाँ नहीं दूसरी जगह योगदान देंगे, लेकिन आप तो योगदान देंगे ही। मुझे लगता है सिर्फ आपने अपना कार्य क्षेत्र थोड़ा बदला है और जिस कार्य क्षेत्र को आप चुनेंगे वो सचमुच में बड़ा भाग्यशाली होगा। सर, मैं क्या कहूँ, जब भी आपसे बात होती है इतना अच्छा लगता है
फ़ोन रखने के बाद भी बहुत देर तक मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और काश मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। सर मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा, और मैं यही चाहूँगा कि आप जिस जगह भी जहाँ भी योगदान देने के लिए अपने इस सर्विस को से रिटायरमेंट लिया है, उस जगह आप और भी अच्छा योगदान दें। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। Good morning, Giriji. I have been associated with you for a very short time, but your personality, you're such a simple person, and that is why I think I have always remembered you. It was really nice knowing you and working with you. Since I'm much younger to you, I would just pray the God that you are blessed with good health and a happy retired life. I know that you love your family a lot, and that this is a big step. Have a very happy retired life, enjoy your family, and do take care. Happy retirement life, Giriji. It was a pleasure working with you. You are always very helpful, simple, courteous, and you would make matters very simple and easy to understand for us as probationers. I and along with our batch will definitely miss you. And one thing I would like to say is that you are the bond that kept INGAF together, and it's a loss for the service and it's a loss for the place. And I wish you all the best in ahead, and God bless you, Giriji. I hope to see you sometime soon after coming back to Delhi. God bless you, Giriji. मंत्रालय व्यय विभाग ने 30 सितंबर 2020 से स्वीकार कर लिया है। तो सर हमें भी कुछ बताइए उनके बारे में। जहाँ तक आपका सवाल है गिरी साहब के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, तो उनका व्यक्तित्व मतलब एक संतुलित मिश्रण है, जिसमें संयम है, जिसमें सादगी है, जिसमें संतुष्टि है। और जहाँ तक गिरी साहब का सवाल है, तो गिरी साहब को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में उनका जन्म हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, कुशीनगर बहुत पवित्र भूमि है भारतवर्ष की, और वहीं पे एक घाघी रिवर है जिसका बुद्धिस्ट पीरियड में नाम था कुप्था नदी, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने निर्वाण लेने से पहले अंतिम स्नान किया था। वहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा कुशीनगर और गोरखपुर में हुई। तदुपरांत देवरिया जनपद, जो कि उसी पुण्य भूमि के अंतर्गत आता है, श्रीमती वृंदागिरी के साथ उनका दाम्पत्य हुआ। अब देखिए कितना सुखद संयोग है कि प्रदीप और वृंदा भगवान की प्रिय, और प्रदीप तो भगवान को है ही अति बहुत ज़्यादा प्रिय। उसके बाद गिरी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं ज्वाइन की, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर वो रहे, जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद मेरा जो उनसे मुलाकात हुई वो शहरी विकास मंत्रालय में हुई, जहाँ वे सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। तो वहाँ से गिरी साहब चले गए भारतीय निर्वाचन आयोग, लेखाधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति पे गए, लेकिन हम लोगों का संबंध उनसे बना रहा। इसी दौरान उनकी बेटी ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक की उपाधि ली, और वो किसी MNC में, किसी बढ़िया MNC में कार्यरत है। बहुत प्यारी बेटी है।
और सुखद संयोग मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सुखद संयोग क्या है कि एक पुण्य भूमि का व्यक्ति दूसरी पुण्य भूमि फरीदाबाद दिल्ली, जो कि पांडवों के काल से भी अति प्राचीन है, कुरुक्षेत्र से भी उनका संबंध रहा, क्योंकि बेटी वहाँ 4 साल पढ़ी और बेटी की शादी भी मथुरा में हुई। मथुरा भी पुण्य भूमि। घाघी नदी और यमुना नदी दोनों ही ऐसी नदियाँ हैं जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो बड़ा प्रारब्ध है और मेरा भी कुछ पुण्य जन्म के कर्म हैं कि मैं उनसे मिला, वरना मेरे जैसे लोग तो मथुरा में यमुना किनारे चाय का खोखा लेके बैठे हुए हैं। तो एक पुण्य भूमि का आदमी जिसका व्यक्तित्व बहुत विराट है, मैं उनसे मिला। मैं आशा करता हूँ कि उनका बाकी जीवन इसी पुण्य भूमि में बीते। हमने उन्हें एक प्रस्ताव भी दिया है कि मथुरा वृंदावन में जहाँ उनकी बेटी की ससुराल है, वो ब्रजवासी लोग हैं और बहुत ही संपन्न लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, और मैं भी मथुरा का मूल निवासी हूँ। तो मैंने उन्हें एक प्रस्ताव दिया है कि वहाँ पे एक छोटा सा घर लें, जिससे कि वृंदागिरी वृंदावन में रहें और उनके चारों तरफ प्रदीप नाम का पुष्प शोभायमान हो, अपनी सुगंध बिखेरे। मैं परमपिता से कामना करता हूँ कि वे आगामी जीवन में स्वस्थ रहें, उल्लासमय रहें और अपने आप को कभी भी रिटायर्ड ना समझें, क्योंकि रिटायर्ड आदमी तब होता है जब वो समझ लेता है कि मैं थका हुआ हूँ। ए मैन इज़ रिटायर्ड व्हेन ही थिंक्स दैट ही इज़ टायर्ड। तो गिरी साहब एनर्जेटिक हैं और हमारी तरह यंग दिखते हैं, तो वो हमेशा ही हमें ऐसे ही यंग दिखते रहें और कभी भी हमारी अगर आवश्यकता महसूस करें तो हमें कॉन्टैक्ट करें। वो मेरे से केवल एक फ़ोन की दूरी पे। When he will be in need, I will be there at their residence or at any desired place. May God bless him with all the good health, wealth and happiness. Thank you. नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ निर्वाचन आयोग में कार्य किया है। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी आयोग में। तब आपने मुझसे पूछा था कि आप हमारे साथ काम करेंगी, तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी क्योंकि मैंने आपको पहले कभी आयोग में देखा ही नहीं था। फिर मेरी पोस्टिंग आपके सेक्शन में हो गई। आप ही ने बताया था कि मैं पेरेंट अकाउंट ऑफिस में हूँ। फिर आपके साथ काम करते हुए कुछ वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम निपटा देते थे और अनुभाग में एक परिवार की तरह रहते थे। आपके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही साधारण और नेक दिल इंसान हैं और आज आपकी फैमिली और हमारी फैमिली में एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है। मैं यही कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपनी नेक दिली सभी लोगों में फैलाते रहें और आप अंत में आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशियों से भरी हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। धन्यवाद। I have honored to work with Girish sir from last 20 years. His work ability was excellent and his behavior with the staff was very cordial. I wish him to enjoy long and healthy life. Thank you. हेलो सर, कैसे हैं आप सर? BRS लेने पर आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी रिटायरमेंट लाइफ बिना किसी परेशानी के ऐसे ही चलती रहे। आप पूर्णतः स्वस्थ एवं स्वस्थ ही रहें। सर, आपके साथ CSW में मेरा काम करने का जो अपना अनुभव है मैं उसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ।
CSWP में आपके साथ आपके अंडर काम करने का मेरा जो अपना अनुभव है वो बहुत ही यादगार रहा। आप जैसी इंसानियत शायद ही आज के समय में और मिले। आप जितने अच्छे सर अधिकारी रहे हैं उससे भी अच्छे आप हैं, बहुत ही अच्छे सर। आपके साथ जितना भी समय मैंने काम किया वह शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगी। आप CSWP के जाने के बाद भी मेरे और मेरे पूरे परिवार से जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आगे जब तक भगवान ने हमें समय दिया मैं आपसे व आपके पूरे परिवार से हमेशा हमेशा इसी तरह जुड़ी रहूँगी। धन्यवाद सर, मिलते रहिएगा। थैंक यू। नमस्ते जी। हमारे माननीय सम्माननीय श्री PK गिरी जी भारत सरकार में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हुए 30 सितंबर को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए। अब ये एक ऐसा अवसर है कि इस पर हम खुशी व्यक्त करें या अपने जो दिल की उदासी है उसे व्यक्त करें, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है तो यही उचित है कि हम इसे खुशी का ही अवसर मानें। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली तो आज 30 सितंबर को आप भारत सरकार की सेवा से निवृत्त हुए हैं। अभी जीवन की एक लंबी पारी आपके सामने है, आपको अपना जीवन की दूसरी पारी शुरू करनी है। इस अवसर पर कुछ हृदय के उद्गार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री PK गिरी जी से मेरी मुलाकात सबसे पहले शहरी विकास मंत्रालय में हुई, निर्माण भवन में। तो हम POD जोड़ू में उस समय था, तो आप हमारे सहायक लेखा अधिकारी बनकर के आए। उनके साथ जो हमने कार्य किया है बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप बहुत ही मिलनसार, शांत स्वभाव के हैं, हंसमुख हैं, खुलकर नहीं बस मंद मंद मुस्काते हैं और काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। उनके साथ काफ़ी हमने लोकल ट्रेन में धक्के भी खूब खाए हैं, लेकिन उनके साथ बैठ कर के ट्रेन में बात करते हुए ये सारी परेशानी होती थी वो दूर हो जाती थी। हमेशा सकारात्मक सोच रखते रहे, बहुत चीज़ों पर मार्गदर्शन भी किया। और एक बार उन्होंने हमें विद फैमिली माउंट आबू की जो सैर करने का सौभाग्य प्रदान किया। सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया और रहने का, ठहरने का बहुत अच्छा कार्यक्रम था परिवार के साथ। तो वो उनकी वजह से हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ हमने उनसे अपने भारत सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में सीखा उसके बारे में उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आप गैप में अभी थे जहाँ से आपने सेवानिवृत्ति ली है। अभी पिछले वर्ष आपसे हमारी मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई, जहाँ पर सिविल अकाउंट डे मनाया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक बार हमारे साथ सेल्फी ली, उनकी मैं कहूँ सेल्फी ले करके हमें गौरवान्वित किया। तो मैं उनके इस मिलनसार स्वभाव को, उनके शांत प्रवृत्ति को बहुत मैं लाइक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके जो भावी जीवन है वो सुखमय व्यतीत हो। उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी नंदिता गिरी, नंदिता गिरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतना अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया है कि वीडियो बना करके उनके बारे में शेयर करें। तो मैं एक बार उनके सुखमय, सुखद, मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ पूरे परिवार के लिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone. I want to say a few words about Giriji, who has taken voluntary retirement on 30th September due to his commitments. I had regular interaction with him, especially after implementation of compact software in our POs. During this time, I found him very earnest and dedicated towards his work. I found his untiring and pleasant attitude quite motivating. We will all miss him. I wish him all health, strength and happiness during his self-fulfillment years. Thank you. गिरी जी नमस्कार, मैं आपका दोस्त RS सुमन। मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई और मुझे पता चला कि आपने VRS ली है और सितंबर के एंड में आप जो सा है VRS लेके हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो सा रिटायर हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत ही शानदार शख्सियत हैं
और हमेशा रहेंगे शानदार शख्सियत। आपका बात करने का अंदाज, आपका वेलकम करने का अंदाज, सबको अपना बनाने का अंदाज, सबको ठीक से समझाने का अंदाज और दोस्ती निभाने का अंदाज और ऑफिसर और स्टाफ के बीच में किसी तरह का कोई ना गैप रखते टीम वर्क में काम करने का अंदाज आपका लाजवाब है। इसी तरह से जैसा हम जानते हैं हम आपस में हम लोग मित्र हैं, आपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया और कर भी रहे हैं और परिवार आपका पूरा सेटल है। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, आपने बहुत अच्छा किया VRS ली। और ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आपकी कमी हमेशा महसूस होगी, पर लेकिन ये है कि और जो लोगों के साथ में आप जुड़ेंगे उनको भी आपका प्यार और मोहब्बत आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इस शुभ मौके पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से मैं आपको ये विश करता हूं परमात्मा से, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा इसी प्रकार मुस्कुराते रहें और सबको अपना प्यार और मोहब्बत देते रहें। दोस्ती आप बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, मुझे नाज है मेरे दोस्त, मुझे आपके ऊपर बहुत नाज है। हम लोग HRD में इकट्ठे थे, HRD के बाद भी उसके बाद हम लगातार अभी भी मिलते रहते हैं और मुलाकात होती ही रहती है और आपका प्यार हमें मिलता रहता है और सब दोस्तों को मिलता रहता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो गिरी जी मेरे दोस्त, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू माय डियर, नमस्कार, बाय बाय। Hello everyone, it is an honor and privilege to me to say something to Giri sir. However, I worked with him not so many years, but on those periods I learned a lot, not only of his procedure but also the special skills for tackling the unforeseen situation. Despite you have a vast and multifaceted experience of doing so many government offices, your behavior is so simple and gentle. You have a good relationship with all the officials of every offices where you worked even before long back. It is very surprising to me to see that a man has so many good quality. Best wishes for very happy retirement. Thank you for everything that you have done for me directly or indirectly, and I shall very miss to you always. And of course, if you decide retirement means you have time to follow some artistic dreams, go for them. Thank you. Best of luck. नमस्कार सर, आपके बारे में क्या कहना। आप तो एक ऐसे स्टैंडिंग ऑफिसर थे तो आपके जाने के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आपका नाम ना लेता हो। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी डेकोरेशन पर आते हैं, लेकिन आपने ऐसा छाप छोड़ा है कि आपके इतने दिन जाने के बावजूद भी सभी लोग आपको मिस करते रहते हैं। ये पे अकाउंट ऑफिस को आप ऐसे ऑफिसर हैं सर जिनको कंप्यूटराइज किया और आप सारा क्रेडिट आपको ही जाता है सर। आपने अपने स्टाफ को इतना अच्छा से सिखाया। हमारा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो बिल्कुल नया था और आपने पहली बार इस सेक्शन को कंप्यूटराइज किया। कंप्यूटराइजर में कोई भी आदमी इस काम से अवेयर नहीं था। उसमें हमारे जैसे बहुत सारे नए स्टाफ सब थे, गलतियाँ होती थी, लेकिन गलतियों को आप इतने अच्छे ढंग से समझाते थे कि जो भी काम करने वाले मोटिवेट होता था कि मैं फिर करूँगा। कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे डांट देते हैं तो कर्मचारी अगला काम करने से डर जाता है कि फिर गलती नहीं की। लेकिन आप पे ये कैपेबिलिटी थी कि किसी से भी कोई भी काम करा सकते हैं और आपने सबको ट्रेन किया और आप ही का आशीर्वाद है कि मैं आज तक इस पे अकाउंट ऑफिस को रन कर रहा हूँ। धन्यवाद। गिरी जी के साथ काम का एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सीलेंट रहा। गिरी जी के अंदर कई बेसिक क्वालिटीज़ थी जो कि उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला कि काम के अंदर उनका टेम्परामेंट जो था बहुत एक्सीलेंट था और उनको काम का नॉलेज इतना आउटस्टैंडिंग था जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई भी समस्या आती थी उस दौरान बड़े उसको पीसफुली तरीके से उसको हैंडल करते थे और पे कमीशन से रिलेटेड कई क्वेरीज आती थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आते थे, बट कभी भी उनको जो है किसी भी तरीके से कभी कंफ्यूज और नहीं देखा और हमेशा काम का उनका पोटेंशियल बहुत हाई रहता था। और बाकी जो है गिरी जी के साथ हमेशा वैसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा रहा। वो काफ़ी ऐसे एडवाइज़र भी थे, अच्छे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ पे भी हमेशा उनका हेल्प रहता था, हेल्प का एटीट्यूड रहता था। कुल मिला के उनका एक मतलब कि बहुत अपनी छाप छोड़ दी गई इलेक्शन कमीशन में जो भी स्टाफ ने उनके साथ काम किया उनका हमेशा सबको मेमोरेबल रहा उस पीरियड।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना।